Hello everyone, this is Naman Mittal welcoming you all back to a special session where we shall be understanding India's Afghan policy. Although we will not directly come on to India's Afghan policy, we will first start this particular session from the Afghan peace process itself. तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि अफ़गान पीस प्रोसेस क्या है, अफ़गान की सिचुएशन क्या है. Only then you will be in a better position to understand about the India's Afghan policy. So let us begin this session. And to all the new learners who have got associated with us for the very first time, please allow me that I can introduce to them few benefits of an academy subscription first. So if you take an academy subscription, you get access to all the educators courses, their classes on the academy platform. All classes on an academy are live, that is they are on real time basis. This makes sure that the environment of class is very much interactive and engaging. You also get test series and doubt clearing sessions at regular intervals, which again make sure that you are properly assessed at regular intervals and no gray area of yours is left to be touched upon in this journey of yours of civil services examination. To get an Academy subscription, you have to download an Academy's learning app and install it on your mobile phone and choose plus category. After choosing or after ticking on the plus category, you have to choose the course or the category of the examination that you are preparing for. In our case, that would be UPSC Civil Services examination. इसके बाद you will get multiple options of the duration for which you want your academy subscription, which will range from 1 month to up till 36 months. आप अपने हिसाब से यहाँ पे duration choose कर सकते हैं of the academy subscription, but the recommended duration would be of 1 year and 2 year. एक साल का अगर आप duration choose करते हैं then it will cost you 49,500, और अगर आप 2 साल का duration choose करते हैं then it will cost you 72,000 rupees. You can avail extra 10% off by applying my code NAMAN NAMAN, and the final price would be then reduced to 1 year की आपकी reduce हो जाएगी price 44,550 पे, और 2 साल की price आपकी reduce हो जाएगी to 64,800 rupees. In a similar manner, if you take optional course, तो एक साल का subscription है 27,500 का. Again, you can avail 10% off by applying my code NAMAN NAMAN, and the final price would be 24,750. So by applying my code, you not only get discount out here of 10%, but also my personal guidance and mentorship. Now let us come to our topic of the day, that is Afghan policy of India, or अफगान पीस प्रोसेस इन ओवरऑल. तो अफगान पीस प्रोसेस से हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, द टॉपिक हैज़ बीन टेकन बिकॉज इट केम इन द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर रिसेंटली, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है. और क्योंकि यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद प्रेसिडेंट भी चेंज होने वाले हैं, सो अगेन अफगानिस्तान पॉलिसी हैज़ कम इनटू द पिक्चर एंड इट इज़ नाउ मोर हाईलाइटेड देन इट वॉज प्रीवियसली इन न्यूज़. तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम और व्हाट इज द सिचुएशन इन अफगानिस्तान. हम यहाँ पे पीस प्रोसेस की बात क्यों कर रहे हैं और क्यों यहाँ पे इंडिया की अफगान पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट अफगानिस्तान में बहुत ही टाइम से इनस्टेबिलिटी चल रही है सिंस पास्ट 19 ईयर्स इन एन एक्टिव मैनर. तो 1994-95 में अफगानिस्तान में अफगान सिविल वॉर हो रहा था, एंड ड्यूरिंग दैट अफगान सिविल वॉर तालिबान इमर्जेंस टुक प्लेस. तो तालिबान इमर्ज हुई ड्यूरिंग द अफगान सिविल वॉर, एंड ड्यू टू और विद द बैकिंग ऑफ पाकिस्तान दिस तालिबान वॉज successfully able to uproot or overthrow the existing मोहम्मद नजीब उल्लाह गवर्नमेंट. उसके बाद तालिबान ने अपना रूल वहां पे फर्म किया इन दी ऑन द अफगानिस्तान सॉइल, एंड देन 9/11 अटैक्स हुए इन 2001 कंडक्टेड बाय अल कायदा. तो ये अल कायदा ने अटैक्स किए, और बुश ने, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एट दैट टाइम, since Al Qaeda was operating from Afghanistan soil, so US president asked Taliban to hand over all the perpetrators of 9/11 attack to USA. तालिबान ने उस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, एंड आफ्टर दैट यूएस बेसिकली इन्वेडेड अफगानिस्तान. और इन्वेजन के बाद यूएस ने जब से इन्वेड किया अफगानिस्तान को इन 2001, आफ्टर दैट इन 2002 यू कैन से, एंड आफ्टर दैट it was successfully able to topple the Afghan governments
तालिबान रूल। तो तालिबान का रूल जो वहां पे एग्जिस्ट कर रहा था उसको टॉपल करने में यूएस सक्सेसफुल हुआ, लेकिन यूएस तालिबान को एलिमिनेट नहीं कर पाया। तालिबान ने बहुत ही वहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फोर्स शो करा एंड इट कुड नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द अफगानिस्तान सॉइल। तो क्योंकि वहां से तालिबान एलिमिनेट नहीं हो पाया और क्योंकि वहां पे यूएस फर्दर अपने गेम्स नहीं अचीव कर पाया, सो अ स्टेलमेट काइंड ऑफ अ सिचुएशन came into being in the Afghanistan region, in Afghanistan particularly, and there was more opinion in the USA from the people of USA that US should withdraw its forces and should not further invest its important soldiers and again its financial resources into a foreign soil just for the sake of eliminating a particular extremist force. So it's better you withdraw from that region and let peace prevail in that particular region. तो यूएस ने फिर विड्रॉल की बात स्टार्ट करी और ओबामा के फर्स्ट टेन्योर से विड्रॉल ऑफ यूएस ट्रूप्स फ्रॉम दी अफगानिस्तान सॉइल ये एक इशू इमर्ज होने लगा। बट इट वॉज ओनली पॉसिबल ड्यूरिंग द ट्रम्प्स एरा। जब ट्रम्प प्रेसिडेंट हैं तो तब से 2016 के बाद से ये इशू और ज़्यादा एस्केलेट हुआ। यहाँ पे और ज़्यादा एक्शंस आपको देखने को मिले, पॉजिटिव एक्शंस और tangible outcomes आपको यहाँ पे देखने को मिले because he was more determined to withdraw troops from the Afghanistan soil. 2018 में a meeting was held in Moscow in Russia. This meeting was basically called as Moscow format. बहुत ही important है Moscow format because this was first significant attempt to अराइव एट अ पीस सोल्यूशन इन अफगानिस्तान। तो इस मॉस्को फॉर्मेट में तालिबान को बुलाया गया, यहाँ पे बाकी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। इंडिया ने यहाँ पे अपना अनऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन दिया था, नॉट ऑफिशियल। वी विल डिस्कस इट फर्दर व्हेन वी विल कम ऑन टू द इंडियाज अफगान पॉलिसी। तो इंडिया ने अपना यहाँ पे अनऑफिशियल प्रेजेंटेशन शो किया था। नो मेजर सिग्निफिकेंट आउटकम कुड बी achieved from this particular Moscow format because यहाँ पे USA involved नहीं था, which is again one of the most significant stakeholder in the entire Afghan process or you can say Afghan peace process. अफगान पीस प्रोसेस में टेंजिबल आउटकम्स आना चालू हुए व्हेन यूएसए प्लेड अ एक्टिव रोल इन देयर। तो यूएसए पहले तालिबान को लेजिटिमेसी नहीं देना चाहता था, इसीलिए तालिबान के साथ डायरेक्ट टॉक्स कंडक्ट नहीं कर रहा था यूएसए। बट लेटर ऑन ट्रंप ने इस पॉलिसी को चेंज करा एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन February 2020 a talk was held in Qatar's capital, that is Doha, and the outcomes are called as Doha Declaration or Doha Agreement. इस एग्रीमेंट को अभी तक का सबसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट माना जाता है इन दी ओवरऑल अफगानिस्तान स्टेबिलिटी एंड अफगानिस्तान पीस प्रोसेस। तो दोहा एग्रीमेंट बेसिकली दो स्टेक होल्डर्स के बीच में हुआ था। फर्स्ट वॉज यूएसए एंड सेकेंड वॉज अफगानिस्तान तालिबान। तो यहाँ पे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे कोई भी और कंट्री इन्वॉल्व नहीं है लाइक पाकिस्तान, चाइना, रशिया और इंडिया। दिस वॉज एक्सक्लूसिवली हेल्ड बिटवीन यूएसए एंड तालिबान। इसके कुछ मेजर आउटकम्स थे लाइक यूएसए फाइनली डिसाइडेड टू विदड्रॉ ऑल इट्स ट्रूप्स इन अ फेज्ड मैनर इन 14 months। 14 महीनों में यूएसए ने कमिटमेंट करा कि हम अपने सारे ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेंगे बट इन अ फेज्ड मैनर। सेकेंडली यूएसए सेड दैट वी विल लिफ्ट all the sanctions that have been put on Taliban। तो sanctions को uplift करने की बात करी यूएसए ने and USA also said that we will ask United Nations to lift partially some of the sanctions from Taliban, and Taliban was asked to ensure that Afghanistan's soil is not used by other extremist organizations, specifically Al-Qaeda and ISIS। तो ISIS, Al-Qaeda और अदर एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अफगानिस्तान की सॉइल को
टेररिज्म के स्प्रेड के लिए या वायलेंस स्प्रेड करने के लिए यूज नहीं करेंगे, ये तालिबान को इंश्योर करना पड़ेगा। सो दीज वर सम ऑफ द मेजर आउटकम्स ऑफ दोहा एग्रीमेंट। लेकिन यहाँ पे एक कैच था एंड दैट वाज बेसिकली प्री रिक्विजिट कंडीशंस। तो कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशंस यहाँ पे सेट करी गई। On failing to achieve these prerequisite conditions, दोहा एग्रीमेंट विल नॉट गेट इंप्लीमेंटेड। तो दोहा एग्रीमेंट को अगर आपको इंप्लीमेंट करना है, इसको इफेक्ट में लेके आना है, तो कुछ कंडीशंस पे आपको एग्री करना पड़ेगा, ऐसे यूएस ने बोला तालिबान को। उन कंडीशंस में सबसे पहली कंडीशन थी प्रिजनर्स स्वैप एग्रीमेंट। प्रिजनर्स स्वैप एग्रीमेंट, इसमें अफगानिस्तान गवर्नमेंट को बोला गया कि आप तालिबान के 5000 प्रिजनर्स को रिलीज करेंगे और तालिबान को बोला गया कि आप अफगान सोल्जर्स 1000 अफगान सोल्जर्स को आप रिलीज करेंगे। नाउ प्लीज पे अटेंशन आउट हियर दैट अफगानिस्तान गवर्नमेंट वाज नॉट अ पार्टी टू द दोहा एग्रीमेंट, yet there were conditions which Afghanistan governments had to meet in order to ensure greater peace in the entire region or in their country। तो ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे मुद्दा बना because it was basically an issue of sovereignty of Afghanistan government that they were not involved in the talks, yet they were asked to meet certain conditions। सेकेंड यहां पे प्री रिक्वेस्टेड कंडीशन थी दैट तालिबान विल होल्ड डायरेक्ट टॉक्स विद द अफगानिस्तान गवर्नमेंट। तो तालिबान को डायरेक्ट टॉक्स होल्ड करनी है विद द अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड बेसिकली दे विल हैव टू इनिशिएट अ इंट्रा अफगान प्रोसेस। तो इंट्रा अफगान पीस प्रोसेस उन लोगों को आपस में इनिशिएट करना है। ये दो प्री रिक्वेस्टेड कंडीशंस सेट करी गई बाय द यूएसए इन द दोहा एग्रीमेंट। तो पीस प्रिजनर स्वैप एग्रीमेंट कंडक्ट हुआ। अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने इनिशियली कुछ रेजिस्टेंस दिखाया बिकॉज ऑफ द इश्यूज दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने 5000 प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया। वहां पे फिर बाद में एक स्टेलमेट आया विद रिस्पेक्ट टू 400 प्रिजनर्स जो तालिबान चाह रहे थे कि वो रिलीज हों, लेकिन उनको रिलीज नहीं किया गया। फिर बाद में लोया जिरगा विच इज द ग्रैंड असेंबली ऑफ अफगानिस्तान, उसने डिसीजन लिया दैट दोज 400 प्रिजनर्स शुड बी रिलीज। तो सब सारे प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया, प्रॉपर प्रिजनर स्वैप एग्रीमेंट को रोल आउट किया गया, इसको इफेक्ट में लाया गया। देन द सेकेंड थिंग वाज फॉर अफगानिस्तान, फॉर तालिबान टू इंटरैक्ट और हैव डायरेक्ट कंसल्टेशंस विद द अफगानिस्तान गवर्नमेंट। अब यहां पे एक और प्रॉब्लम आई, जब अक्टूबर 2019 में अफगानिस्तान के इलेक्शंस हुए थे तो उनका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आ पाया था, वहां पे एक स्टेलमेट अचीव हुआ था। टू लीडर्स दैट इज अशरफ गानी एंड अब्दुल्ला अब्दुल्ला, दो वहां पे मेजर ओपोनेंट्स थे। दे कंटेस्टेड इलेक्शंस in opposition to each other and both of them declared winners of 2019's election of Afghanistan। तो वहां पे 2019 अक्टूबर से लेके मई 2020 तक डेडलॉक चलता रहा एंड नो क्लियर कट गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड इन अफगानिस्तान, और इसीलिए प्रिजनर स्वैप एग्रीमेंट में भी दिक्कत आई और तालिबान को भी डायरेक्ट टॉक्स कंडक्ट करने में दिक्कत आई। देन इन मई अ पावर शेयरिंग एग्रीमेंट was signed between अब्दुल्ला अब्दुल्ला एंड अशरफ गानी। इस पावर शेयरिंग एग्रीमेंट में यह डिसाइड किया दोनों लीडर्स ने दैट अशरफ गानी विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान एंड अब्दुल्ला अब्दुल्ला विल लीड द पीस प्रोसेस। तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला पूरे पीस प्रोसेस को लीड करेंगे विथ नो और नेग्लिजिबल इंटरफेरेंस फ्रॉम अफगानिस्तान गवर्नमेंट, दैट इज मोहम्मद अशरफ गानी एंड अशरफ गानी विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान गवर्नमेंट। तो तालिबान का भी यही मानना था, इट हैड बेटर ट्यूनिंग विद द अब्दुल्ला अब्दुल्ला, सो इट वांटेड अब्दुल्ला अब्दुल्ला टू लीड द पीस प्रोसेस।
तो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट जब अफेक्ट में आया, उसके बाद तालिबान और अफगानिस्तान में पहली बार टॉक्स कंडक्ट हुए इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020। और इस टॉक का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है फॉर इंडिया दैट इंडिया टुक पार्ट इन दीज टॉक्स इन एन ऑफिशियल मैनर। तो दो सिग्निफिकेंस हैं सितंबर 2020 के talks के between Taliban and Afghanistan government. First is that for the very first time intra-Afghan talks of intra-Afghan peace process initiate हो पाया, and secondly India was present there। तो ये पूरा आपको एक मैंने पीस प्रोसेस एक ब्रीफ में बताने की कोशिश करी है, समराइज करने की कोशिश करी है फॉर योर ओन ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और अब हम आते हैं इसमें ऑन इंडियाज अफगान पॉलिसी। तो जब से यूएस का इन्वेजन हुआ है इन अफगानिस्तान, जब से यूएस ने इन्वेड करा सिंस 2001 एंड 2001-2 तब से बहुत ही ज्यादा इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई अफगानिस्तान में। नाउ इंडिया डिड नॉट वांट अ पर्टिकुलर रीजन to convert again into a terrorism flourishing kind of a region when it already has two adversaries in its neighborhood, that is Pakistan and China। तो इंडिया के पास ऑलरेडी दो मेजर इरिटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, पाकिस्तान और चाइना। इंडिया ये नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो और पाकिस्तान चाइना उसको एक्सप्लॉइट करें और उस रीजन को भी इंडिया के अगेंस्ट में फंक्शन करने के लिए अलाउ करें, बिकॉज तालिबान इन अफगानिस्तान इज बैक्ड बाय पाकिस्तान एंड इट होल्ड्स गुड रिलेशंस विद द पाकिस्तान आईएसआई। तो यहां पे ये चीज इंडिया नहीं चाह रहा था, एंड सो इंडिया इन्वॉल्व इटसेल्फ एक्टिवली इन अफगानिस्तान एंड सपोर्टेड अफगानिस्तान गवर्नमेंट। पहले हमद करसाई की गवर्नमेंट थी, उसको भी इंडिया सपोर्ट कर रही थी। फिर मोहम्मद अशरफ गानी की गवर्नमेंट आई, उसको भी इंडिया ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। Till 2020, India has invested near around $3 billion in Afghanistan. Majority of the investment of India in Afghanistan relates to socio-economic infrastructure and development। तो इंडिया ने जो मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट करा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में करा है, सोशल नीड्स में करा है और इकोनॉमिक नीड्स में करा है ऑफ अफगानिस्तान। एंड वी हैव प्लेड, you can say, an insignificant role in terms of military and strategic engagements in Afghanistan। तो बहुत ही कम रोल हमने प्ले करा है in the terms of strategic and military terms in अफगानिस्तान। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजर डेवलपमेंट में जो इंडिया ने वहां पर रोल प्ले करा है, दोज आर रिलेटेड टू क्रिएशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गारलैंड हाईवे। हमने गारलैंड हाईवे क्रिएट करा है विच provides connectivity to Afghanistan to the अरेबियन सी थ्रू चाहबार पोर्ट। तो चाहबार पोर्ट से हमने गारलैंड हाईवे क्रिएट करा अफगानिस्तान में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज देलाराम जरांज हाईवे। तो देलाराम जरांज हाईवे क्रिएट करके उसको कनेक्ट करने की कोशिश करी है हमने विथ चाहबार पोर्ट इन ईरान, सो दैट इट कैन एक्सेस सी रूट्स, इट कैन गेट एक्सेस टू सी रूट्स, और हम भी अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सकें विथ अफगानिस्तान। एंड ऑल्सो वी कैन फैसिलिटेट आवर ट्रेड फर्दर फ्रॉम अफगानिस्तान to Central Asia, because through Pakistan it is not possible for us to trade with Afghanistan and then to Central Asia, because Pakistan in a very abrupt manner switches off the trade routes between पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड इंडिया। तो इसीलिए हमें एक ऑल्टरनेटिव रूट की जरूरत थी जो हमने चाहबार के थ्रू क्रिएट किया, और इससे अफगानिस्तान को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ। देन वी बेसिकली क्रिएटेड अ डैम कॉल्ड एज सलमा डैम इन अफगानिस्तान for generation of electricity, and so that people of Afghanistan can get water for their normal use and also for their drinking purposes। We created an electric transmission line called as Pul-e-Khumeri line, जो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। Then we created parliament building of Afghanistan, and we also run many other programs
social programs in Afghanistan, like we have hospitals, we run healthcare facilities out there, and we also run ITEC program in Afghanistan. तो ये कुछ मेजर इंडिया के इन्वेस्टमेंट रहे हैं एज ऑफ नाउ इन अफगानिस्तान. मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दो पॉइंट आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, दैट इंडिया हैज प्रोवाइडेड few equipments, arms and ammunition to Afghanistan's forces, like it has provided Mi choppers, Mi-25, Mi-35 choppers to Afghanistan, so as to supplement their efforts, Afghanistan forces efforts to fight with Taliban, because हम तालिबान को वहां पे एग्जिस्ट नहीं होने देना चाहते हैं, and we want Afghanistan's government टू हैव अपर हैंड इन अफगानिस्तान. अफगानिस्तान गवर्नमेंट को हम वहां पे स्टेबलाइज करना चाहते हैं, नॉट तालिबान. एंड सेकेंडली वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू अफगानिस्तान फोर्सेस. तो हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, वी हैव प्रोवाइडेड फ्यू इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज टू दी अफगानिस्तान फोर्सेस. ये हमारा अभी तक का मेजर रोल रहा है. अगर मैं तालिबान के स्पेसिफिक में बात करूं, सो इंडिया ऑल्सो डज नॉट वांट टू डायरेक्टली एंगेज विद तालिबान, बिकॉज बाय एंगेजिंग विद Taliban in a direct manner, what India believes it, we will be giving it a legitimacy, and we do not want to give legitimacy to Taliban. First, it is a radical organization which believes in violence, and it has kept Afghanistan in instability for a very long time. And secondly, it has strong relations with Pakistan, especially ISI, and so we do not want to fuel तालिबान्स एग्जिस्टेंस फर्दर, क्योंकि इसके हमें रिपरकशंस आगे चल के देखने को मिल सकते हैं. तो ये दो मेजर रीजन है कि हमने तालिबान को कभी भी सपोर्ट नहीं करा, और यही मेजर रीजन है कि हमने मॉस्को फॉर्मेट में कभी भी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन अपना शो नहीं करा, और दोहा एग्रीमेंट में हमें नहीं बुलाया गया, और उसके बाद यूएन स्पॉन्सर्ड टॉक्स कंडक्ट हुए थे इन द मंथ ऑफ जून, कॉल्ड एज 6+4+1 टॉक्स. इसमें भी 6+2+1 टॉक्स, इसमें भी इंडिया को नहीं बुलाया गया. एंड द रीजन गिवन वाज दैट इंडिया डज नॉट शेयर बॉर्डर विद अफगानिस्तान, एंड सो इंडिया इज नॉट कॉल्ड इन दोहा एग्रीमेंट और इन द टॉक्स sponsored by United Nations 6+2+1. But this is wrong. India shares direct borders with Afghanistan of about 110 km through Wakhan corridor. Although that Wakhan corridor is not accessible to us because that area is occupied by Pakistan and it comes under POK. तो ये पॉइंट वैलिड नहीं है, बट द मेजर रीजन आउट हियर वाज दैट अगेन इंडिया डिड नॉट वांट टू प्रोवाइड लेजिटिमेसी टू तालिबान. इंडिया ने अपना स्टेटमेंट शुरू से यहां पे क्लियर किया हुआ था कि जहां पे तालिबान इन्वॉल्व होगा वहां पे हम अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे. सो दिस वाज वेरी मच क्लियर, एंड सो इंडिया वाज नॉट कॉल्ड इन सच टॉक्स. लेकिन रिसेंटली यूएन के अफगानिस्तान स्पेशल एनवॉय, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इंडिया आए, ज़ाल्मे खलीलजाद. He insisted India to directly engage with Taliban with respect to all the concerns that we have. See, we were not directly involving or directly engaging with Taliban, but that was not reaping much beneficiary results for us. तालिबान का तब भी वहां पे एग्जिस्टेंस मेंटेन था. एज ऑफ नाउ तालिबान का अफगानिस्तान में 50% एरिया में अपना इन्फ्लुएंस है, और वोटर बेस उसका एग्जिस्टिंग अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से ज्यादा है. तो तालिबान इज अ रियलिटी दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय इंडिया एज वाज एक्सेप्टेड बाय यूएसए. सो वट एवर पीस प्रोसेस इज टू बी कंक्लूडेड इन अफगानिस्तान, वन थिंग इज वेरी मच क्लियर फॉर श्योर, दैट तालिबान definitely is gonna get high shares or high stakes in the overall power sharing agreement.
और वहां पे तालिबान को सपोर्ट करने के लिए देयर आर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड चाइना, बट देयर आर वेरी लेस कंट्रीज हु सपोर्ट अफगानिस्तान गवर्नमेंट विच ऑलरेडी इज फ्रेगमेंटेड, क्योंकि वहां पे अशरफ घानी इज अ लीडर हु वांट्स पीस, हु वांट्स गवर्नमेंट टू प्रिवेल, हु वांट्स डेमोक्रेसी टू प्रिवेल, बट अब्दुल्ला हैज स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद तालिबान। तो इंडिया दूर बैठ के डेफिनेटली कुछ भी नहीं कर सकता है, अपने आप को आइसोलेट करके डेफिनेटली कुछ भी यहां पे पॉजिटिव आउटकम्स नहीं इंश्योर कर सकता है। सो इंडिया ग्रेजुअली रियलाइज्ड कि we need to engage in these talks, we need to take part in these talks, because only then we will be able to support Afghanistan's government and thereby increase the bargaining power of Afghanistan's government। तो आप टॉक्स में जब पार्टिसिपेट करोगे तो आप तालिबान को इंश्योर कर सकते हो कि उसको मिनिमल स्टेक्स मिले और अफगानिस्तान गवर्नमेंट को ज्यादा स्टेक्स मिले, अफगानिस्तान गवर्नमेंट का लार्जर रोल हो इन द ओवरऑल पावर शेयरिंग एग्रीमेंट ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पीस प्रोसेस जब भी कंक्लूड हो उसमें प्रो इंडिया पॉइंट्स हो, हम वहां पे स्टेबिलिटी इंश्योर कर सकें, और वहां पे क्योंकि तालिबान इज नाउ अ रियलिटी, इट श्योरली हैज टू कम इनटू पावर, तो आपको तालिबान के साथ भी रिलेशंस मेंटेन करने पड़ेंगे, अदरवाइज पाकिस्तान इज ऑलरेडी टू एक्सप्लॉइट तालिबान एंड द पर्टिकुलर इनस्टेबिलिटी काइंड ऑफ अ सिचुएशन अगेंस्ट इंडिया। तो आप इससे पहले खुद ही इंश्योर कर लो कि तालिबान के साथ आपके बेटर रिलेशंस मेंटेन रहें, ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सॉइल पे तालिबान या अलकायदा या आईएसआईएस जैसे ग्रुप्स को आपके अगेंस्ट में यूज ना कर सके। तो इंडिया हैज चेंज्ड इट्स स्टैंस, इसीलिए इंडिया ने सितंबर 2020 में पार्टिसिपेट करा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द फर्स्ट इंट्रा अफगान पीस टॉक्स। इंट्रा अफगान पीस टॉक्स पे मैं थोड़ा सा एम्फोसिस देना चाहूंगा। In entire Afghan peace process, there is no thing which is more prior or more important than इंट्रा अफगान पीस प्रोसेस, क्योंकि यूएस विड्रॉ कर जाएगा, देयर आर अदर कंट्रीज हु अगेन विल प्ले एन एक्सटर्नल रोल, बट इट इज दीज टू प्लेयर्स, इट इज they are these two players, Afghanistan government and Taliban, who are gonna run the government and entire स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ अफगानिस्तान। तो इन दोनों के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और इन दोनों के बीच में पावर शेयर एग्रीमेंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इंट्रा अफगान टॉक्स का सक्सेसफुल होना पूरे पीस प्रोसेस में सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी तक इंडिया की एक पॉलिसी थी विथ रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, एंड दैट वाज entire peace process of Afghanistan should be Afghan led, Afghan controlled and Afghan owned. So we wanted Afghanistan government to lead its peace process. It should be controlled by Afghanistan government and it should be owned by Afghanistan government. But this does not seem to be a practical idea anymore because of the growing legitimacy of Taliban. तालिबान ने अपना फॉर्मल ऑफिस भी ओपन करा है कतर में, as it was also a condition in the Doha agreement. तो ये अब जो भी अपने कंसल्टेशंस करता है with the other stakeholders, it holds all such kind of meetings and consultations through its formal office in Qatar. तो अभी इंडिया की जो पॉलिसी थी अफगान लेड, अफगान कंट्रोल्ड, अफगान ओन्ड, इसको इंडिया ने थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया है, बिकॉज इट हैज नाउ अडॉप्टेड मोर प्रेगमैटिक फॉरेन पॉलिसी, और you can say that it has now embraced realism in its foreign policy. तो इंडिया का पहला एग्जाम्पल आप देंगे सितंबर 2020 की टॉक्स में पार्टिसिपेट करने का, और सेकेंड एग्जाम्पल आप देंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल वेयर इंडिया हैज कमिटेड $80 million
in Afghanistan's future, and Afghanistan's future is not without Taliban for sure. तो तालिबान यहाँ पे डेफिनेटली होने वाला है, एंड कीपिंग दिस थिंग इन माइंड इंडिया हैज स्टिल कमिटेड $80 million इन अफगानिस्तान. तो इंडिया अब ये एक्सेप्ट कर चुका है कि तालिबान वहां पे मेजर रोल प्ले करने वाला है, एंड येट इट इज इन्वेस्टिंग. सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट मूव ऑफ इंडिया एंड इंडिया फॉरेन पॉलिसी. तो इंडिया ने यहाँ पे कमिटमेंट किया है $80 million का, जिसमें इंडिया हाई कम्युनिटी इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स डेवलप करेगा. इंडिया यहाँ पे एक और डैम क्रिएट करेगा, दैट इज शहतूत डैम. तो यहाँ पे शहतूत डैम इंडिया बनाएगा. दिस डैम वुड बी ऑन द पुल खमेरी ट्रांसमिशन लाइन. तो जहां से वो ट्रांसमिशन लाइन जाती है, दिस डैम वुड बी देयर इन काबुल, and it will provide drinking water to 2 million people in Kabul. So this is the new plan of India, and this clearly shows the changing policy or the changing aspects of its policy with respect to Afghanistan, जो आपको बहुत ही क्लियर मैनर में पता होना चाहिए with few examples, substantive examples. तो वो आपको यहां से मिलते हैं. नाउ इसको कंक्लूड आप कैसे करेंगे? देखिए, जब प्रेसिडेंट चेंज होगा यूएसए का इन द जनवरी 2021, सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द बिडेन्स रोल. बिडेन इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कितना ज्यादा एक्सेलरेट करता है या कितना इस पे अटेंशन पे करते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंगली द एंटायर थिंग्स विल मूव ऑन. अगर यहाँ पे बिडेन ने थोड़ा सा भी रिलेक्टेंस दिखाया, विच वुड नॉट बी द केस बिकॉज ही टू वांट्स टू विड्रॉ फोर्सेस फ्रॉम द अफगानिस्तान, तो डेफिनेटली ये प्रोसेस एक्सेलरेट होगा. एटलीस्ट इट विल मेंटेन इट्स मोमेंटम एंड पेस, एंड सो इंडिया विल गेट opportunity to again involve itself in the entire peace process. लेकिन अगर ये प्रोसेस को थोड़ा भी यहाँ पे रिलेक्टेंट बनाया गया या इसका पेस को थोड़ा भी रिड्यूस किया गया, तो द प्रॉब्लम वुड बी दैट तालिबान अगेन वुड कम आउट विथ मोर वॉयलेंस. देखिए, जब भी कहीं पर कोई पीस प्रोसेस होता है तो वहां पे एक पार्टी जिसके साथ एक लेजिटिमेट अथॉरिटी नेगोशिएट कर रही होती है, वो बेसिकली वॉयलेंस में इन्वॉल्व हो जाती है. जब से पीस प्रोसेस स्टार्ट हुआ है इस साल फरवरी से, तालिबान ने एक साल में, अभी एक साल पूरा नहीं हुआ है, तालिबान ने अब तक दे हैव कंडक्टेड मोर देन 13,000 अटैक्स इन अफगानिस्तान. तो ये तालिबान इतना ज्यादा यहाँ पे वॉयलेंस में इन्वॉल्व है बिकॉज it wants to showcase its importance, it wants to increase its bargaining power. वो नहीं चाहता है कि बाकी स्टेक होल्डर्स उसको सीरियसली ना लें, एंड दिस इज अ केस एप्लीकेबल टू एनी काइंड ऑफ नेगोशिएशंस. अगर आप इंडिया में नागा टॉक्स पे भी अप्लाई करोगे, तो नागा टॉक्स का जो पीस प्रोसेस कंक्लूड होना था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019, वो क्योंकि नहीं हुआ, तो नागा इंसर्जेंसी भी एस्केलेट हो रही है बिकॉज दे अगेन वांट टू showcase their importance, they want to increase their bargaining power, they want the government to take them seriously, and so such things take place. लेकिन अगर आप पीस प्रोसेस को डीरेल कर दोगे, आप पीस प्रोसेस को स्लो कर दोगे, तो यहाँ पे तालिबान विल हैव एडवांटेज ओवर अफगानिस्तान गवर्नमेंट, क्योंकि अफगानिस्तान गवर्नमेंट यहाँ पे ऑलरेडी फ्रेगमेंटेड है, पॉइंट नंबर 1, एंड अफगानिस्तान गवर्नमेंट के पास यहाँ पे सपोर्ट कम है, स्पेशली दैट ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड ऑल्सो ऑफ इट्स ओन पॉपुलेशन. तो ये कुछ यहाँ पे मेजर फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. एवरीथिंग विल डिपेंड आफ्टर न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए assumes his position or takes charge of USA as न्यू प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. सो दीज वर सम ऑफ द इश्यूज जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि कैसे आप इन चीज़ों को लिंक करेंगे. पीस प्रोसेस मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया. दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड एनी फर्दर डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान एंड विद दी अफगानिस्तान पीस प्रोसेस. और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे बहुत ही अप्रिशिएट करी जा रही है, क्योंकि बहुत टाइम से ये कहा जा रहा था कि इंडिया रियलिज्म को एम्ब्रेस करे, इंडिया प्रैक्टिकल अप्रोच को अडॉप्ट करे, क्योंकि इंडिया अगर खुद को आइसोलेट रखेगा तो दैट डज नॉट मीन दैट दैट प्रोसेस विल गेट डिरेल्ड, बिकॉज वी आर नॉट दैट इन्फ्लुएंशियल स्टिल. यही इंडिया गलती करता है कई बार बीआरआई प्रोजेक्ट में. एससीओ में हमने देखा था कि बीआरआई के सारे मेंबर्स हैं एससीओ में एक्सेप्ट इंडिया,
ब्रिक्स में सारे मेंबर्स हैं एक्सेप्ट इंडिया. सो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर मार्जिनलाइजिंग इंडिया एट द ग्लोबल लेवल. सो देयर इज नीड फॉर इंडिया टू एम्ब्रेस realism and bring more pragmatism into its foreign policy. आगे और भी कोई टॉपिक्स हमें मिलेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस पे तो डेफिनेटली हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे by seeing those topics from the lens of India's foreign policy. आज के लिए इतना ही. एंड टू ऑल द लर्नर्स जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लीज अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं देन यूज माय कोड नमन NAMAN एंड यू कैन गेट 10% ऑफ अलॉन्ग विथ माय पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटरशिप. ऑल्सो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज आप लोग मस्ट रीड करेंट अफेयर्स ज्वाइन करें जो मैं अनअकैडमी ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट रन करता हूं ऑन डेली बेसिस थ्रू स्पेशल क्लासेस. तो अनअकैडमी की ऐप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन द ID mittal.naman29 जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. प्लीज क्लिक ऑन दैट, ओपन माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी ऐप, फॉलो मी ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, regular notifications with respect to my classes that I take as special classes on an Academy app absolutely free of cost. मस्ट रीड करेंट अफेयर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं विच इज अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा करेंट अफेयर्स को यहाँ पे समझने का फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. हम एक टॉपिक को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं और उसको मल्टीपल जगहों पे अप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं. तो हियर आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड करेंट अफेयर्स बट एम्फसाइज मोर ऑन दी एप्लीकेशन पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स कि आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे जो अभी यूपीएससी की डिमांड है इन द एग्जामिनेशन. तो आई होप you have enjoyed this video and learned a lot from it. Thank you all for your patient listening. Have a great day ahead.